Welcome back to Abhigyan Academy. In today's video lecture, we would be discussing a very important topic from environmental ecology. Topic that we will be discussing today is climate change. All right, a very important topic from both the static and dynamic point of view. Something that is of global concern not just for the examination, even as humans, even in the question of the survival of the human race. Okay, this is a very important topic to understand and to know because this is a big challenge beyond borders, beyond any kind of ethnicity, and a challenge to the whole humankind that we need to understand to the deepest level. All right. So let us now start. First, let us understand what is climate change. All right. Before we go into climate change, let us understand what is climate. All right. Let us understand what is climate. See, the conditions of the atmosphere, that whether it's humid, whether the air is dry, whether the temperature is hot or cold or whatever, okay, changes over time. Now, when we see the atmospheric conditions over a place for a short term period, all right, maybe for a few days or a week or a month or something like that, okay, that particular phenomenon is known as weather. Whenever we are checking the atmospheric conditions for a short term, maybe a few hours or days or at max weeks, okay, such kind of conditioning is called a weather. Okay? But now, if we see the weather in an area for a long amount of time, for a long term period, see the weather is something, weather is a short term thing, right? And the weather changes maybe in a few hours or in a few days, or at max in a week or a couple of weeks, right? So, in a long term, maybe the criteria is that maybe for some 3 decades more than 3 decades, 30 plus years, right? If we see the average weather patterns, if we see the average weather patterns in an area for more than 30 years, then that particular thing is known as climate. So what do we come to the conclusion? The conclusion is that the fundamental difference between climate and weather is that weather essentially means a short-term condition of atmospheric parameters like temperature, humidity, so on and so forth. Maybe for a few hours or a few days. But weather on this, but sorry, pardon me, climate on the other hand is the weather over a long period of time, maybe for something around 25 to 30 plus years. Whatever the average weather pattern is in a place, that is the climate of the area. Okay? So now, what is climate change? We understood what is climate, we understood what is weather. Now let us understand what is climate change. Now, what's happening is that the Earth's climate, okay, that is the long conditions on Earth, like the temperature of the Earth, the humidity on Earth, okay, all these things have been changing over a period of time due to many factors, okay, and because of that, the weather patterns are also changing. Now, what do we know about climate? Climate is nothing but the average of the weather patterns over a longer period of time. Now, if the weather patterns are only changing, then the average weather also in an area will change, right? And hence, as a result of that, the climate of the area also changes. Okay? So, what it essentially means, due to the sudden changes in weather, whatever changes are coming in the climate, okay? Whatever long-term changes are affecting the climate, that particular thing or phenomenon is known as climate change. Now, understand this climate change can be due to many reasons. It can be due to natural processes also. It can be due to human activities also. Okay, but the most threatening and dangerous part is the human part. Because see, climate change is bound to happen because there are many natural processes on this planet that are causing changes in temperature and hence the climate is changing. But the fact is, many human activities like burning of fossil fuels or deforestation or like rapid industrialization, industrial waste, these things are actually speeding up. देखो climate change होना ही है, it is bound to happen. But climate change का जो speed है, उसको accelerate कर दिया, speed को बढ़ा दिया है किस चीज ने? The activities done by humans. We can primarily what? The emission of greenhouse gases. Now, what is greenhouse gases? Let us understand that. See, now this particular phenomenon is known as the greenhouse effect. Let us understand what is greenhouse. Now, what actually happens is that there are certain gases in the atmosphere. Okay, what these gases do is that, see,
the heat from the sun reaches the earth, right? And what happens is that after the sunlight hits the earth, it reflects back into the space. सन का लाइट आया, अर्थ को हिट किया, रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चला गया, ठीक है। बट होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ गैसेस ऐसे हैं जो उस सनलाइट के हीट को ट्रैप कर लेते हैं। जो लाइट है वो हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाता है, नो डाउट, बट उसमें जो हीट था, ठीक है, उस हीट को कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द हीट इज नॉट एबल टू गो आउट, ठीक है। वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना where what is happening is that gases in the atmosphere are trapping the heat and are not allowing the heat of the sun to escape back into space. This particular phenomenon is known as the greenhouse effect. और जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं, दोज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। सो व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ओजोन जिसको हम O3 बोलते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट ग्रीन हाउस गैसेस होना जरूरी क्यों है? देखो, ग्रीन हाउस गैसेस ऑल टुगेदर एक खराब चीज नहीं है, बिकॉज अगर आप सोच के देखोगे, वी ह्यूमंस नीड सनलाइट एंड हीट एंड टेम्परेचर टू सर्वाइव। अगर प्रॉपर सनलाइट और हीट हमें नहीं मिलेगा, देन वी विल स्टार्ट फ्रीजिंग, आइसेज आ जाएगा, हम जम के मर जाएंगे। दैट इज वाई ग्रीन हाउस गैसेज आर इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक बेसिक मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को अपने खुद के नरिशमेंट और खुद के सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो हम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में चले जाएंगे, वी विल स्टार्ट फ्रीजिंग, वी विल सी द ऑनसेट ऑफ एन आइस एज एंड वी विल ऑल फ्रीज टू डेथ, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ग्रीन हाउस गैसेस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमें हीट का जरूरत है, जो नीडफुल हीट है, हमारा टेम्परेचर है, दैट द ग्रीन हाउस गैसेस गिव अस बाय ट्रैपिंग द हीट ऑफ द सन। बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि ड्यू टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट एटमोस्फियर में बढ़ गया, ठीक है। और उसके वजह से क्या हो रहा है, जितना हीट का हमें जरूरत था उतनी तो ट्रैप हो ही रहा है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा हीट भी ट्रैप हो जा रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, हीटिंग जितना जरूरत था उससे ज्यादा हीटिंग हो जा रहा है, गर्मी ज्यादा लग रही है, जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग रहा है। गर्मी लगना बुरा नहीं है, वी नीड इट टू सर्वाइव, ग्रीन हाउस गैसेस वी नीड देम टू सर्वाइव, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इट इज बिकमिंग एक्सेसिव, ठीक है। एक्सेसिव क्यों हो रहा है, विल गो अहेड एंड सी। तो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो चीज हो रही है ना, कि एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस होने की वजह से मोर हीट इज गेटिंग ट्रैप्ड एंड इट इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द होल अर्थ, दिस फेनोमेनन इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैस कितना हीट ट्रैप कर सकता है, दैट इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द पर्टिकुलर गैस। अब एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटिव स्केल में निकाला जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटिवली एक दूसरे गैस को देखें, कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में एक दूसरा गैस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना हीट ट्रैप कर सकता है, दैट पर्टिकुलर phenomenon or that particular quantity is known as the global warming potential. Now let us understand what is global warming, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, सिंस ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट कंसेंट्रेशन बढ़ गया है एटमोस्फियर में, ये लोग अब ज्यादा हीट ट्रैप करने लगे, the amount of heat is now getting excessive more than what we need, that is not good, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंस ज्यादा हीट ट्रैप हो रहा है तो टेम्परेचर में राइज भी ज्यादा होगा, और जो एवरेज टेम्परेचर है हमारे ग्लोब का, तो ग्लोबल टेम्परेचर का एक एवरेज जो है उसमें अब राइज आने लगा। दिस राइज इज नथिंग बट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कंसिक्वेंसेस क्या क्या है? देखो, जो पोलर पोलर आइस है, पोल्स में, वहां जो ग्लेशियर्स है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो ग्लेशियर्स अब पिघलने लगे, ठीक है। अब ग्लेशियर्स पिघलते ही क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघल के क्या बनेंगे, ग्लेशियर्स विल मेल्ट इनटू वाटर, और समंदर में मिल जाएंगे जाके। ग्लेशियर्स पिघलते ही क्या है, पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पिघल के पानी ही बनेगा, और पानी बनते ही क्या होगा, सी लेवल में राइज हो जाएगा, समंदर और ऊंचा हो जाएगा, ठीक है।
समंदर ऊंचा होते ही क्या होगा, कोस्टल बॉर्डर्स में प्रॉब्लम होगा। जिन देशों का जो कोस्टल टाउन है, कोस्ट के पास अगर सी लेवल राइज हो गया, तो जो कोस्टल एरियाज है वो थ्रेट में आ जाएंगे कि सी लेवल राइज होते ही वो डूब सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी देयर इज अ थ्रेट दैट बॉम्बे एंड कैलकाटा माइट गेट कंप्लीटली सबमर्ज्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और पार्ट्स ऑफ बॉम्बे और पार्ट्स ऑफ कैलकाटा, ठीक है, माइट गेट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, नाउ इस अब क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर में ऊपर नीचे होगा, वेदर पैटर्न्स बिकम इरेटिक, इरेटिक ऐसे इरेशनल हो जाएगा, ऊपर नीचे कुछ भी भागता रहेगा वो। अब देखियो, देखो जो भी प्लानिंग वगैरह होता है इकोनॉमी में, उसमें टेम्परेचर का बहुत रोल होता है, जो क्योंकि लॉट ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन इंडिया, where almost 49%, that is almost half of the population is working in the primary sector, the agriculture sector। ठीक है, अब जैसे ही ये वेदर में उल्टा पुल्टा होगा, एग्रीकल्चर इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एग्रीकल्चर इज स्टिल वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ अब ग्लोबल वार्मिंग से जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, वेदर उल्टा पुल्टा होगा, इट विल ऑल्सो गो ऑन टू अफेक्ट द एग्रीकल्चरल पैटर्न्स, विच इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज। ठीक है, अब 2011 से लेके 2020 तक का जो डेकेड था, इट वाज रिकॉर्डेड एज द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब पहला, इसके पहले जो डेकेड हम पास करके आए हैं वो आज तक का सबसे वार्मेस्ट डेकेड था। ठीक है, अब हमारा ग्लोबल गोल क्या है, पूरे दुनिया में गोल ये है कि ये जो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है ना, समथिंग डिग्री सेल्सियस हमेशा बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, गोल ये है कि इस इंक्रीज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, मतलब मेक श्योर करना है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट शुड नॉट इंक्रीज बाय मोर देन 2 डिग्रीज। प्रेफरेबल लिमिट इन्होंने ये रखा है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था अर्ली 1900 में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले 1850 से लेके 1900 का जो दशक है, डेकेड है, उसके पहले के जो लेवल्स, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस आते कहाँ से, इंडस्ट्रीज से आते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ही ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो बढ़ गए एटमोस्फेयर में। तो द गोल इज कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो 1.5 डिग्री सेल्सियस कर करके बढ़ रहा था टेम्परेचर, उस इंक्रीज को वापस उतने पे लेके आना। ठीक है, अब समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के रूट कॉजेस क्या क्या है, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सबसे पहला तो भाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हर जगह में यूज होते हैं, वेदर इट्स इन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है, जो हेवी इंडस्ट्रीज है वहां पे फॉसिल फ्यूल्स बर्न, कोल वगैरह बर्न किया जाता है। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते ही फॉसिल फ्यूल्स रिलीज अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल्स जलाओगे तो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जलने के बाद। तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बिकमिंग एक्सेसिव इन द एटमोस्फेयर, इट इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, दूसरा है डिफोरेस्टेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स नीड कार्बन, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइव, फोटोसिंथेसिस के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो होता क्या है, पेड़ जो होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर। तो होता यह है कि प्लांट्स की वजह से हम बच जाते हैं। वेन एवर वी रिलीज एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एयर, व्हाट हैपेंस, वो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्लांट्स उसको खुद से यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट पेड़ों को काटने की वजह से नाउ ट्रीज आर डिक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग ट्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने वाले लोग कम हो गए ना, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं अपने अंदर, तो वो कम हो जाता है एटमोस्फियर। अब सिंस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने वाला ही नहीं रहा, तो दैट इज वाई द अमाउंट ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग मोर, बिकॉज प्लांट्स एक्ट लाइक अ कार्बन सिंक, सिंक मतलब जहां तुम किसी चीज को भर देते हो, लाइक अ बेसिन। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ सिंक ओनली, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है सब प्लांट्स में फेंक दो वो ले लेंगे। बट प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकोगे कहाँ, देयर इज नो प्लेस फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू गो, वो जमता रहता है एटमोस्फियर में, टेम्परेचर बढ़ाता रहता है। दूसरा ये है कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है, और जो लाइव स्टॉक वगैरह है, फिर पैडी फील्ड्स जो होते हैं राइस के, वहां काफी मीथेन रिलीज होता है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। एंड लास्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये जो सीमेंट का फैक्ट्री, अर्बनाइजेशन, नए बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, केमिकल्स मैन्युफैक्चर करना, इन सब तरह तरह के इंडस्ट्रीज में
क्या होता है, द बिगेस्ट थिंग इज कि यहाँ काम होने के बाद सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ही है, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी फैक्ट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर। ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज। अब मेन प्रॉब्लम यही है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट असेसमेंट, कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं कि एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे पहला, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर्स का पिघलना फास्ट हो गया है। मोर टेम्परेचर, क्योंकि तुम जितना आइस आइस के पास तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो आइस पिघल जाएगा ना, ज्यादा तेजी से पिघलेगा। सिमिलरली, बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर्स, नाउ ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट अ वेरी फास्टर रेट, विच इज इंक्रीजिंग द सी लेवल, वेरी कंसर्निंग। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वही है, हो क्या रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो ग्लेशियर्स पानी बन के समंदर में मिल जाते हैं जाके। इससे समंदर में पानी का अमाउंट बढ़ जाता है, एंड हेंस द सी लेवल इज राइजिंग। इससे कोस्टल इरोजन होगा। कोस्ट के पास अगर समंदर का लेवल बढ़ गया, तो कोस्ट का बहुत सारा हिस्सा समंदर इरोड करके खींच के धुल धो के लेके चला जाएगा। एंड उससे भी बड़ा रिस्क है कि फ्लड हो सकता है। फ्लड कैसे होगा, अगर सी लेवल बढ़ गया तो हो सकता है कि समंदर का पानी कोस्ट में लैंड एरिया में घुस जाए आके, ओवरफ्लो होकर। ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि CO2 का अमाउंट बढ़ गया है, तो ये CO2 ओशंस में मिक्स हो जाता है एटमोस्फेयर से। होके CO2 जैसे ही मिक्स होता है ओशंस में, ओशन का पीएच लेवल कम हो जाता है। एंड पीएच कम होने का मतलब क्या है, इट इज बिकमिंग मोर एसिडिक, एंड इट इज नॉट गुड। बिकॉज जो मराइन इकोसिस्टम है, जो कोरल रीफ्स है, एसिडिक पीएच में ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, मराइन एनिमल्स, मराइन फौना एंड फ्लोरा आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस एसिडिक पीएच, दैट इज बाय ग्लोबल वार्मिंग। एंड ऑफ कोर्स नेचुरल डिजास्टर। अब जैसे ऊपर नीच होगा वेदर में, रेन का पैटर्न बदल जाएगा, अचानक से ज्यादा रेनफॉल हो जाएगा, साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, एंड इट कैन लीड टू सडन डिजास्टर्स। कभी कभी वाइल्ड फायर्स भी होता है, इतनी गर्मी हो जाती है कि किसी पेड़ में आग लग जाती है, उसी एक पेड़ से पूरे के पूरे जंगल में आग जल जाता है। इट लीड्स टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट। ऑल्सो जंगल में रहने वाला जो वाइल्ड लाइफ है, उसको भी ये इफेक्ट कर जाता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं कि सोशली और इकोनॉमिकली ये हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट थिंग टू नोटिस, फूड सिक्योरिटी। आप देखो, क्लाइमेट में ऊपर नीच होने से एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर डैमेज होगा। एग्रीकल्चर डैमेज होते जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डैमेज हो जाएगा। क्रॉप्स का सप्लाई रुक सकता है, मतलब बे सीजन एकदम सप्लाई रुक सकता है, कि सीजन के बीच में क्रॉप का सप्लाई रुक गया, एंड इट कैन बी वेरी वेरी फेटल। अगर क्रॉप्स कम हो गए, क्रॉप्स कम होने के कारण फूड फूड शॉर्टेज होगा, क्योंकि क्रॉप प्रोड्यूस ही नहीं हुआ प्रॉपर्ली। एंड इन हाई पॉपुलेशन कंट्री लाइक इंडिया, अगर खाना थोड़ा सा भी शॉर्ट पड़ जाता है, लोग इतने ज्यादा है कि लोग भूखमरी से मरेंगे। वाटर स्कार्सिटी, क्योंकि अगर रेनफॉल पैटर्न्स ऑल्टर हो गया, टाइम पे बारिश नहीं होगा, टाइम पे बारिश नहीं हुआ, बिकॉज अ लॉट ऑफ आर इरिगेशन वाटर। ठीक है। काम का पानी हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके लेते हैं, स्टोर करके लेते हैं। अगर रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, तो जो काम के लिए हमें इरिगेशन वगैरह के लिए जो पानी चाहिए, उस पानी का भी स्कार्सिटी हो जाएगा। हेल्थ रिस्क, क्योंकि हीट स्ट्रोक वगैरह हो सकता है एक्सेसिव गर्मी से। ठीक है। एंड वाटर वेक्टर बोर्न डिजीजेस, क्योंकि गर्मी के जगह में ही ये सब मच्छर वाली बीमारियां ज्यादा होती है। ठीक है। मलेरिया, डेंगू, ये सब और बढ़ेगा। एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि होगा क्या कि देखो, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किसी जगह का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, वो जगह रहने लायक नहीं बचा, तो लोग क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ के कहीं और जाने लग जाएंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, दे हैव टू चेंज द प्लेस, बिकॉज ऐसे एक्सेसिव हीट में वो रह नहीं सकते। इस वजह से क्या होगा, लोगों का फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा अपने जगह से। इट विल बी अ वेरी वेरी बिग लॉस। ठीक है। अब इंडिया में वल्नरेबिलिटीज क्या है, देखो, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हमारा जो पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज वेरी वेरी वल्नरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग। अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज हमारे हिमालय में बहुत सारे हिमालयन ग्लेशियर्स, एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दिस हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। इन हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से अब रिवर का फ्लो इफेक्ट होगा।
And I'll be very straightforward here. River is the one of the main freshwater supplies in India. रिवर का फ्लो इफेक्ट होते ही इंडिया में फ्रेश वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम आएगा. एग्रीकल्चर विल बी अफेक्टेड बिकॉज इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से बट इवन टुडे इंडियन फार्मर्स आर वेरी मच रिलायंट ऑन द रिवर्स फॉर देयर इरिगेशन वाटर. जैसे ही वो रिवर का सप्लाई खराब होगा इरिगेशन में प्रॉब्लम आएगा, एग्रीकल्चर विल बी टेक अ मैसिव हिट. मॉनसून डिपेंडेंसी, जैसा कि मैंने कहा इंडिया में अभी भी लोग फार्मर्स नेचुरल चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. एंड इंडिया में तो एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा मॉनसून डिपेंडेंट है. किसी सीजन अगर बारिश ढंग से नहीं होती है कितने सारे किसान लटक के मर जाते हैं, दे कमिट सुसाइड. अनफॉर्चुनेटली दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. सो अगर मॉनसून में दिक्कत आने लगी, अगर मॉनसून इरेटिक हो गया तो उससे एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा. और जो हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो रूरल पॉपुलेशन है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन मोस्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर समवेयर और दी अदर इफेक्टिंग एग्रीकल्चर. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाए. ठीक है. यहाँ पे देयर इज अ मैप. जितना डार्क कलर है वो जगह ग्लोबल वार्मिंग से उतना ही ज्यादा वल्नरेबल है, जितना लाइट है वल्नरेबिलिटी उतना ही कम है. अब देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर में क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या स्लो करने के लिए. ठीक है. सबसे पहला यूएनएफसीसीसी. ठीक है. ये यूएन की एक बॉडी है. ग्लोबल लेवल में क्लाइमेट एक्शन लेना, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है यूएन ने. फ्रेमवर्क टू टैकल क्लाइमेट चेंज एट द ग्लोबल लेवल, दैट इज द यूएनएफसीसीसी. फिर एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था. अब देखो हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होता है मेनली ग्रीन हाउस गैसेस के. ग्रीन हाउस गैसेस क्यों होता है, क्योंकि एमिशंस, बिकॉज दे आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड मेनी अदर रीजंस. ठीक है. तो क्योटो प्रोटोकॉल ने बेसिकली सारे देशों पे एक बाइंडिंग लगा दी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन एमिशन अगर ज्यादा हो गया तो ग्रीन हाउस गैसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा. ठीक है. एंड द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट में पूरे दुनिया ने मिलकर ये कमिटमेंट दिया कि ग्लोबल वार्मिंग में जो मतलब ग्लोबल टेम्परेचर का जो इंक्रीज है, दैट इंक्रीज शुड नॉट बी मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, इट शुड बी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. देन द आईपीसीसी, आईपीसीसी में साइंटिफिक गाइडेंस दिया है. इसलिए जो भी पॉलिसीज बनानी चाहिए अलग अलग गवर्नमेंट्स को, द पॉलिसीज दैट नीड टू बी मेड इन द कंट्री फॉर बेटर क्लाइमेट प्लानिंग, उसके लिए साइंटिफिक लेवल पे गाइडेंस दिया हुआ है. देयर इज समथिंग नोन एज द सीओपी, द कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ठीक है. ये इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे देश जाके पार्टिसिपेट करते हैं. और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज लाइक एन अल्टीमेट कन्वेंशन. यहाँ पे सारी मोस्टली डिसीजंस ली जाती है कि क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल लेवल पे कैसे टैकल करना है. नाउ लेट अस लुक एट इंडियाज रिस्पॉन्स. इंडिया क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल कर रहा है. फर्स्ट, इंडिया ने एक एनएपीसीसी बनाया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है. इस प्लान में इंडिया ने 8 नेशनल मिशंस को इंटीग्रेट किया है और नेशनल लेवल पे इंडिया इज ट्राइंग टू टैकल क्लाइमेट चेंज. ये तो एनएपीसीसी तो पूरे देश का हो गया सेंट्रल लेवल पे. हर स्टेट, अब देखो हर स्टेट का रिक्वायरमेंट तो सेम नहीं होगा. एवरी स्टेट इन इंडिया इज डाइवर्स. नो अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड हैज दिस मच स्टेट वाइज डाइवर्सिटी लाइक इंडिया. एंड हेंस इंडिया में हर स्टेट का रिक्वायरमेंट भी अलग है, क्योंकि हर स्टेट का क्लाइमेट भी अलग अलग होता है इंडिया. इट इज लाइक दैट. सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए भी अलग अलग से एक्शन प्लान कमिटी बनाया गया है. एनएपीसीसी सेंटर के लिए है और हर स्टेट के लिए अलग से एक एसएपीसीसी. ठीक है. देन देयर आर एनडीसीज. ठीक है. इंडिया ने एक नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किया है दैट वी आर डिटरमाइंड टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज एट अ पर्टिकुलर लेवल. और इंडिया ने नेट जीरो टारगेट रखा है कि बाय 2070, इंडिया ने अनाउंसमेंट कोप 26 में किया था जो रिसेंटली हो गया है. ठीक है. उसमें इंडिया ने स्ट्रिक्टली ये अनाउंस किया है कि 2070 तक नेट एमिशन जीरो होंगे. नेट एमिशन जीरो का मतलब ये नहीं कि इंडिया कार्बन एमिट करेगा ही नहीं, इंडिया कार्बन एमिट करेगा, बट मेक श्योर करेगा कि वो जितना एमिट कर रहा है उतना कार्बन वो किसी ना किसी तरह से वापस रीअब्सॉर्ब भी कर रहा है. ठीक है. उससे क्या हुआ, अगर
5 अमाउंट ऑफ कार्बन गया तो इंडिया बोलेगा कि 5 अमाउंट ऑफ कार्बन में वापस भी ले रहा हूं, तो 5 - 5 द नेट अमाउंट विल बिकम 0। ठीक है। COP26 ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में। इंडिया ने वहां पे एक 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी दिया है, मतलब 5 पॉइंट्स में स्ट्रेटेजी दिया है, 5 पॉइंटर्स में। दैट इज वाई दिस स्ट्रेटेजी फ्रॉम इंडिया इज ऑल्सो नोन एज पंचामृत। उसमें इंडिया ने बहुत से टारगेट्स दिए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल के अलावा एनर्जी निकाला, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड पावर एनर्जी, ऐसा टाइप का एनर्जी जो प्रोड्यूस करने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं होती। दैट विल बी इट from today's video lecture, where we had to talk about climate change and the global and Indian response to climate change. ठीक है। I hope this video was helpful for you and informative for you. ठीक है। I will be back with another video very soon. Until then, take care, study well, goodbye and Jai Hind.